Hello friends, welcome once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक इमॉर्टल स्टोरी, एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी, लिविंग और डेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like always, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नोट टू द राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों इंडिया के ग्रेटेस्ट राइटर्स, पोइट्स और थिंकर्स में से एक हैं। ही इज अ मैन ऑफ मैनी अचीवमेंट्स and he was born in Kolkata, Bengal and came from a very wealthy and cultured family known for its आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन। बहुत उनकी फैमिली ने कंट्रीब्यूट करा था उस समय के बंगाल के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के अंदर। टैगोर जब इस बैकग्राउंड में उनका लालन पालन हुआ, व्हेन ही ग्रू अप इन सच अ रिफाइंड बैकग्राउंड, he became famous for his creative works, not just in literature, केवल लिटरेचर में नहीं, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट which reflect जो भी इनके चाहे म्यूजिक है, चाहे आर्ट पेंटिंग्स हैं, चाहे इनकी पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, दे रिफ्लेक्ट डीप इमोशंस एंड आइडियाज अबाउट लाइफ, सोसाइटी एंड नेचर। Wrote originally in Bengali, later in English also, and that is why his works were popular both in India and around the world. अगर हम उनके ग्रेट अचीवमेंट्स की बात करें, ही इज बेस्ट नोन एज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में उनको ये ऑनर दिया गया था बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑफ हिज collection of poems known as Gitanjali. Now, also he is known as the composer of not one but two national anthems, India Jan Gan Man and Bangladesh Amar Shonar Bangla. He also founded Vishwa Bharati University in a village named Shanti Niketan. And the purpose of this university was not just imparting formal education, but promoting a unique blend of Indian and global education. Because of such a wide influence over generation of students, he is fondly called Gurudev, a title given by his admirers. Let's talk about some of his major works. There are so many works, but here is a brief list. First is obviously Gitanjali, which is a collection of poems written on nature, spirituality. Then there is this novel Gora, written about the clash of identity and societal expectation set at the colonial India. Then The Home and the World, which is again Ghar Bare, a novel about love, freedom, nationalism, and how these clash together. Then there is Chokhe Bali, another very popular novel, deals with the psychological aspects of relationships and widowhood, and many short story collections like Gulp Guchha. Gulp is a story and Guchha is again a collection. चलिए बात करते हैं हम आज की जो हमारी स्टोरी है, Living or Dead, originally written in Bengali and titled Jibito o Mrito. It is a poignant story, very heart-touching story. पहले ये 1892 में पब्लिश हुई थी बंगाली मैगजीन साधना के अंदर, एंड लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन गल्पा गुच्छा। 84 के आसपास इसके अंदर टोटल स्टोरीज हैं। स्टोरी डील करती है, देखिए वेरी सिंपल भी है, लेकिन इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी डीप एंड रिफ्लेक्टिव टच अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, वेरी थिन लाइन, कहने के लिए जीवन और मृत्यु एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट एस्पेक्ट्स हैं, बट एक्चुअली समटाइम्स देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एंड द प्रोटैगनिस्ट, द हीरोइन ऑफ दिस
story is Kadambini, who is a widow and who is mistakenly believed, ऐसा गलती से, गलत फहमी से मान लिया जाता है that she is dead. Now the societal assumption, उनका ये विश्वास परिवार का और समाज का कि कादम्बिनी डेड है और उसका उस वर्ल्ड के अंदर एज अ डेड पर्सन उसका ये ट्रेजिक ब्रीफ पीरियड जर्नी, इनके मीडियम से टैगोर एक्सप्लोर करते हैं फ्रेजिलिटी, कितना फ्रेजाइल है, कितना नाजुक है, कितना क्षणभंगुर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इमोशनल बॉन्ड्स एंड सोसाइटीज फियर ऑफ द अननोन. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. देखिए स्टोरी ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, जो हीरोइन है इस स्टोरी की, कादम्बिनी, who is the widowed daughter-in-law of Sharda Shankar, who is the jamindar of a village in Kolkata, Ranihart. देखिए कादम्बिनी is so unlucky, so unfortunate, she has no family left on her father's side. मतलब उसके पीहर साइड कोई भी नहीं है, all of them have passed away, and not only this, she has also no one on her husband's side. Actually बहुत यंग एज में, just after her marriage, she become a widow, and that is why she even don't have her own children. She is deeply attached to only one person, and that is her elder brother-in-law's youngest son. उनके जो देवर हैं, उनके जेठ जो हैं, उनके लड़के से उसका एक डीप कनेक्शन है. लड़के की खुद की मदर जो है, शी हैज बीन सीवियरली इल, बहुत ज्यादा बीमार रहती है जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है. दैट इज वाई वर्चुअली कादम्बिनी ने ही रेज अप करा है, ब्रॉट अप करा है इस बच्चे को. द नेफ्यू इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू हर, बिकॉज एक म्यूचुअल अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, पूरा टाइम बच्चा उसके साथ स्पेंड करता है और काकी माँ कहकर उसको लगातार एड्रेस करता है. इनफैक्ट शी इज दिस बॉय इज द only reason for happiness in the life of otherwise very dull, very sad, very empty life of Kadambini. Writer comments, writer खुद ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिलेशनशिप like raising someone else child, कादम्बिनी का खुद का बच्चा नहीं है, उसकी जेठानी का ये बच्चा है, उसको बड़ा करना, इट क्रिएट्स अ यूनिक काइंड ऑफ बॉन्ड. ये एक अलग टाइप के बॉन्ड को क्रिएट करता है, बिकॉज there are no legal or social claims over the child. ना उसका माँ का रिश्ता है, so she does not have that kind of expectation from the child. Generally जो एक पेरेंट अपने बच्चे को रेज अप करते हुए जो expectations, aspirations, होप्स रखते हैं, जिससे थोड़ा सा एक बर्डन आ जाता है रिलेशनशिप पर, दिस इज फ्री फ्रॉम दैट बर्डन. Love is unconditional, based solely on affection rather than obligation. Kadambini has no one else to show her love. She poured out all the love on the child. सारा प्यार, देखिए बटा भी नहीं है उसका प्यार. There is no husband, no brother, no one else. तो जो उसके अंदर स्टोर हाउस है, जो भी उसका जो ट्रेजर है प्यार का, वो सारा इस बच्चे के ऊपर खुलता है. Now the central action of the story, central incident of the story, क्या होता है? Kadambini dies suddenly on a monsoon night. Now her heart stopped beating unexpectedly. Everything else in the world continues as usual. She is very young. अचानक ऐसा होता है कि हार्ट बीट चलना बंद हो जाता है. Obviously assume किया जाता है that she has died. Now avoid any police involvement कि पुलिस पूछेगी, आएगी. There will be so many different things. 4 ब्राह्मण को एम्प्लॉय किया जाता है, बुलाया जाता है जमींदार साहब के द्वारा, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू टेक अवे द बॉडी रात को ही ले जाएं और क्रिमेट कर दें, शमशान में अंतिम संस्कार कर दें विदाउट एनी डिले. Now the cremation ground is located in Rani Ghat, far from any residential area. Generally जो होता है, especially उस टाइम में 19th century में जो होता था, शमशान जो घाट होते थे, they were quite remote from the residential complex. हम जो जहां पर लोग रहते थे उससे काफी दूर हटकर था. There is only 2 notable features जिससे पता चलता था there is something. एक हट थी और एक लेक थी
जिसके पास एक banyan ट्री था, बड़ा सा बरगद का पेड़ था। इसके अलावा देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ इन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। जो ये 4 आदमी जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कादम्बनी के कॉप्स डेड बॉडी को वहां प्लेस कर देते हैं एंड दे नाउ वेट फॉर द वुड, जो लकड़ी अंतिम लास्ट राइट्स के लिए, अंतिम संस्कार के लिए चाहिए, उसका वेट करते हैं। द वुड डज नॉट अराइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए मानसून नाइट है, ओवरकास्ट स्काई है, बहुत टाइम नहीं आती। नाउ नॉट एबल टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दो उनमें से आदमी निताई और गुरुचरण, दे डिसाइड कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड, रीजन क्या है इस डिले का। जो बिधु और बनमाली, रेस्ट ऑफ द 2 बाकी जो 2 हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्टे बिहाइंड एंड गार्ड द कॉर्प्स, कोई एनिमल नहीं ले जाए। Now in the dark monsoon night, overcast sky, Bidu and Banmali, they sit there for a long time, लंबे समय तक इंतजार करते हैं। लालटेन एक लेकर आए थे, वो भी उसने बंद हो गई है, खत्म हो गया है ऑयल, डैम्प एटमॉस्फेयर की वजह से मैच स्टिक नहीं हो पा रहे हैं, तो दैट इज वाई। और ईरी, बहुत ही फियरफुल, बहुत ही भयानक, डराने वाला वो एटमॉस्फेयर है। लॉन्ग साइलेंस एंड देन दोनों में से एक जना सजेस्ट करता है कि चलो मैं जाता हूं और कुछ टबैको लेकर आता हूं, तंबाकू पी लेते हैं तो कुछ तो टाइम पास हो। लेकिन व्हाट ऑब्वियसली दूसरा कहता है, यू वांट मी टू स्टे अलोन विद द डेड बॉडी, तुम चाहते हो मैं अकेला रुकूं? नो, नॉट पॉसिबल। सो विद ईच पासिंग मिनट दे बिकम मोर एंड मोर नर्वस। दोनों में से कोई उठता नहीं है और ये सोचने लगते हैं, देखिए हमें यहां पर बैठा गए, वो दोनों खुद पता करने गए थे लेट क्यों हो रहा है और अब आ नहीं रहे, मस्ट बी एंजॉइंग द स्मोक समवेयर एल्स, वो जरूर कहीं ना कहीं पी रहे होंगे। नाउ सडनली क्या होता है, दे फील कि वो जो अर्थी थी जिसके ऊपर कादम्बनी का डेड बॉडी था, देयर इज अ मूवमेंट एंड द कॉर्प्स, द डेड बॉडी इज लाइंग। और बिदु एंड बनमाली, ये एक बड़ा नेचुरल हम समझ सकते हैं, दे स्टार्ट टू शेक विद फियर, ट्रैम्बल विद फियर, उनको बिलीव नहीं होता। और फिर उनको एक हट जहां पर वो अर्थी रखी हुई थी वहां से कराने की आवाज आती है, नो मोर एबल टू बेयर दिस, इसको टॉलरेट, उसको सहन नहीं कर पाते। दे रन टुवर्ड्स द विलेज, क्योंकि उनको लगता है देयर मस्ट बी अ स्पिरिट, अ घोस्ट, जो उनको कभी भी शिकार बना सकता है। भागते हैं बदहवास होकर, डर कर, एंड 3 मील तक दौड़ते चले जाते हैं एंड फाइनली दे मीट निताई एंड गुरुचरण, जो अब क्रिमेशन ग्राउंड लौटकर आ रहे हैं। और बिदु और बनमाली बताते हैं कि हम क्यों दौड़ते हुए, बिकॉज कोई ना कोई हेड के अंदर हलचल थी और बॉडी जो में मूवमेंट था, तो कहते हैं हटो, तुम लोग पागल हो, डर गए हो, रात का टाइम था, चलो लेट्स गो बैक और जो हमें टास्क दिया हुआ है उसको पूरा करते हैं। But when they all return to the hut, what they find to their surprise, शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि अर्थी खाली है और कॉर्प्स या डेड बॉडी मिसिंग है। दे वंडर, कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल लाइक जैकल, भेड़िया कोई वहां पर आया और ले गया, बट जो शीट, भेड़िया आता तो केवल बॉडी लेकर जाता, जो कफन, जो शीट था वो भी मिसिंग है। एंड देयर आर सम फुट मार्क्स, पांव चलने के निशान एक औरत के वहां पर हैं, विच शोज के जो भी था वो खुद खड़ा होकर गया है। नाउ दे नो वेरी वेल कि अगर उन्होंने जाकर शारदा शंकर को ये बात बोली कि किस तरह से उनसे ये पूरा जो मामला है बिगड़ गया है, दैट कादम्बनी वाज नॉट डेड, दैट वेयर शी हैड गॉन, दे डोंट नो कहां चली गई, तो उनको भयंकर डांट पड़ने वाली है, प्लस उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सो दे थॉट इट बेटर, ज्यादा बेहतर ये होगा कि शारदा शंकर को हम कह दें, ओके वी हैव डन द गिवन टास्क, हमने बॉडी के लास्ट राइट्स परफॉर्म कर दिए हैं। द नरेटर इन्फॉर्म्स, अब क्या इन्फॉर्म करता है कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, कादम्बनी डिडंट डाई, केवल उसका जो हार्ट था वो कुछ पीरियड के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। जब उसको होश आता है, शी फाउंड हरसेल्फ सराउंडेड बाय डार्कनेस इन ए टोटली स्ट्रेंज प्लेस, जो उसने लाइफ में कभी नहीं देखी है, अपने आप को वो वहां पर पाती है। शी रिकॉल्स
कि एक दर्द सा उसको हुआ था हार्ट के अंदर, और वो सांस नहीं ले पा रही थी, और वो बिल्कुल एक तरह से बेहोश होकर गिरने वाली थी, और वॉइस उसकी जो थी, वो गला जो था रुंध रहा था। एंड शी हैज सेड दीज लास्ट वर्ड, दी आस्क खोका, खोका इज दैट चाइल्ड, वो बच्चा जिससे वो अटैच्ड है, टू कम टू मी, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूं। उसके बाद एवरीथिंग इज ब्लैंक इन हर माइंड, कैसे वो वहां उस हवेली से यहां क्रिमेशन ग्राउंड तक आ गई। शी वंडर्ड इफ शी हैज गैदर्ड एनफ लव फॉर हर जर्नी इनटू डेथ, क्योंकि उसकी लाइफ तो ब्लैंक ही थी, उसकी लाइफ तो एम्प्टी थी। क्या उसके लाइफ का मिशन पूरा हो गया? क्या उसकी लाइफ में जो लव उसको मिलना था वो मिल चुका? शी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ at first कादम्बनी thinks that she must be in hell, उसकी डेथ हो चुकी है और यही हेल होगा। टोटल एम्प्टीनेस, कोई भी यहां है नहीं, डार्कनेस, टोटल अंधेरा है, ऐसा ही उसने पढ़ा था। देन शी स्लोली रिकॉग्नाइज द प्लेस, कि घर के गांव के पास की ये जगह है, एंड रिमेंबर्स कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, जब इस लेक में उसने स्नान किया हुआ है, शी हैड बेथेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। हर लास्ट मेमोरी जो उसके दिमाग में आ रही है इज शारदा शंकर का रोशनी से भरा हुआ घर, और अब शी इज इन द डार्क, बैरन, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ क्रेमेटोरियम, ये शमशान घाट। So obviously she is a young woman, she is inexperienced, तो वो डर जाती है, and she decides कि मुझे तुरंत ही घर जाना चाहिए। she basically had this first thought कि मैं फटाफट लौट कर उधर चली जाऊं, but suddenly she realizes कि वो घर कैसे जाए, वहां से वो एक डेड बॉडी के रूप में निकली है। How can she go back? She would not be accepted. उसको वहां कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। She is no longer alive. अगर वो alive नहीं होती तो वो क्रिमेशन ग्राउंड में क्या कर रही है? वो कहीं और भी हो सकती थी, but if she is there, it must be so कि वहां से वो एज ए डेड बॉडी निकली है। अब उसका जो वहां रिटर्न होगा, that will be like an इल आमिन, एक बहुत ही बड़ा अपशकुन होगा, तो वो वहां नहीं लौट सकती। इसी के साथ ये रियलाइज करती है शी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड, ये जो संसार है, ये जो मानव जीवन है, वह उसका हिस्सा नहीं है। एंड शी हैज बिकम अ स्पिरिट ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड। सडनली फील्स फ्री, उसको लगता है कि मैं हर चीज से आजाद हूं, हर बंधन से आजाद हूं। जिस भी चीज ने मुझे पकड़ रखा था, उन सब चीजों, वो सारे बंधन टूट गए हैं। द रूल्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। शी फील्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ फ्रीडम। अचानक इतनी ऊर्जा आती है, इतनी फ्रीडम आती है, तो लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, जैसे एक पतंग होती है जिसकी डोर कट जाती है, जैसे एक बादल होता है जो पानी से खाली हो जाता है। शी स्टार्ट्स मूविंग अहेड, बहुत तेजी से वो तेजी से बढ़ना शुरू करती है, फील्ड्स क्रॉस करना शुरू करती है। बट वी नो शी इज नॉट डेड, वो फिजिकल अभी भी जीवित है। एंड दैट्स व्हाई जितना चलती है, जितना बढ़ती है आगे, उतना ही उसकी स्ट्रेंथ फीकी पड़ने लगती है, उसके फुट स्टेप्स अनस्टेडी होने लगते हैं, पांव डगमगाने लगते हैं। पूरी रात इस तरह से वो चलती रहती है, खेत के बाद खेत, जंगल के बाद जंगल पार करती रहती है, अनअफ्रेड, जब तक इट इज डार्क, अंधेरे, क्योंकि शी कंसिडर्स हरसेल्फ अ स्पिरिट। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग आती है, जैसे ही उजाला होता है, जैसे ही आसपास के लोग दिखने लगते हैं, शी बिगिंस टू फील अनईजी। शी डज नॉट वांट टू बी इन कांटेक्ट विद द ह्यूमन वर्ल्ड। उसको लगता है कि जैसे ह्यूमन वर्ल्ड के लोग, जैसे आम आदमी घोस्ट्स और स्पिरिट्स से डरते हैं, शायद उतना ही डर स्पिरिट और घोस्ट्स में ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। बोथ आर एक्सक्लूसिव वर्ल्ड्स टू ईच अदर। कपड़े उसके गंदे हो गए हैं, मड में कवर हो गए हैं, पूरी रात वो सोई नहीं है, उसके बाल डिसहेवल्ड हो गए हैं, बिखर गए हैं, फ्राइटनिंग उसका अपीयरेंस है। अगर इस समय वो ह्यूमन कंपनी में होती, अगर किन्हीं बच्चों के बीच में होती,
वो निश्चित रूप से उसके ऊपर पत्थर मांगते, मारते, उसको एक स्पिरिट, एक डीमन, एक चुड़ैल समझते, और इस चीज से वो और भी ज्यादा डर रही है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है, फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट पर्सन शी कम्स इनटू कांटेक्ट विद, जो सबसे पहले उसके टच में आता है, इज अ काइंड जेंटलमैन। वो उसी रोड पर जा रहा है, उसके साथ उसके पास एक कार्ट है, वो वहां रुकता है और उससे पूछता है, यू लुक फ्रॉम अ गुड हाउस, ऐसा लगता है अच्छे घर से आई हो, इस रात को, इस सिचुएशन, इस कंडीशन में आप कहां जा रही हो? कादम्बिनी डज नॉट नो हाउ टू आंसर, क्या जवाब दे, बिकॉज शी हैज नो डेस्टिनेशन इन हर माइंड। उसको पता ही नहीं है कि किस मंजिल पर, किस जगह उसको जाना है, उसको यही नहीं पता वो इस दुनिया में है या नहीं है। जेंटलमैन इज ऑब्वियसली वेरी कंसर्न्ड, चिंतित है उसकी इस कंडीशन को देखकर, और वो कहता है, लेट मी टेक यू योर होम, आप मुझे बताएं आपका घर कहां है। बट कादम्बिनी knows that she cannot go back to her in-laws home, अब वो वहां नहीं जा सकती। सडनली उसको याद आती है अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड, जो वहां जिसके साथ बचपन बीता था, और अब वो शादी होकर अपने ससुराल में रहती है। उसका नाम है जोगोमाया। जोगोमाया, जिसके साथ सालों से वो अलग थी, लेकिन अभी भी ओकेजनल कम्युनिकेशन उनके बीच में होता रहता है लेटर्स के मीडियम से, जिससे उनको पता है कि जोगोमाया कहां रहती है, और जिसमें वो एक दूसरे के लिए अपना अनडाइंग लव शेयर करते हैं, और दोनों महसूस करते हैं कि एक बार अगर वापस से मिले तो फिर कोई उन्हें अलग नहीं कर सकेगा। इस तरह की बातें कादम्बिनी के मन में एक सोर्स ऑफ होप देती हैं कि शायद जोगोमाया के पास वो अभी भी जा सकती है। As such, she tells the gentleman to take her to श्रीपति चरण's बाबू हाउस in निश्चिंदपुर। निश्चिंदपुर जोगोमाया का ससुराल है और श्रीपति जोगोमाया के हस्बैंड का नाम है। जब वो वहां पहुंचती है, जोगोमाया इज ओवरजॉयड टू सी हर, शी कांट बिलीव हर आईज। उसको विश्वास नहीं होता कि एकदम से बिना सूचना इतने लंबे, उसने बहुत बार पहले भी कादम्बिनी को बोला था, बट शी नेवर हैव अराइव्ड, लेकिन अब वो आ गई है। शी इज क्यूरियस, निश्चित रूप से बहुत उसके मन में जिज्ञासा है, किस तरह से कादम्बिनी ने अकेले इतनी दूर आना मैनेज करा, और कैसे उसके इन लॉज ने परमिट कर दिया। कादम्बिनी रिक्वेस्ट सर, उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कहां से आई हूं, इन लॉज ने कैसे दिया, और हाथ जोड़कर कहती है, इफ यू अलाउ मी, मैं यहीं एक कोने में अपनी जिंदगी बिता दूंगी, जो मेरे से इस घर का काम हो सकेगा, एज अ मेड, एज अ सर्वेंट, मैं वो करूंगी। जोगोमाया इज शॉक्ड, मेरी फ्रेंड ऐसे क्यों बोल रही है। वो उसको गले लगाती है और वो कहती है, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ फ्रेंड, तुम मेरी मित्र हो और मित्र की तरह तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। यू कैन स्टे इन दिस हाउस एज लॉन्ग एज यू वांट। इसी समय जोगोमाया के हस्बैंड श्रीपति एंटर करते हैं। कादम्बिनी बिना सिर ढके, जो एक कस्टम है, बिना कोई अभिवादन करे, बिना उसको ग्रीट करे, चुपचाप वहां से चली जाती है। जोगोमाया इज अगेन वेरी मच सरप्राइज्ड, शॉक्ड। उसको लगता है कि ये कैसे कर रही है, दिस इज नॉट कर्टसी, लेकिन वो किसी तरह से कवर अप करती है, एक्सक्यूज देती है। शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। एंड श्रीपति बाबू, ही इज अगेन अ जेंटलमैन, ही सेज इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जोगोमाया के घर कादम्बिनी रहना शुरू करती है, बट दो शी इज लिविंग देयर, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लगता है देयर इज अ डीप डिवाइड, एक बड़ा डिवाइड है जोगोमाया और उसकी दुनिया के बीच में। जोगोमाया बिलोंग्स टू द लिविंग वर्ल्ड, शी बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ द डेड। तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कनेक्ट करना सोशली विद हर फैमिली, विद अदर पीपल लिविंग इन दैट हाउस लाइक मेड्स। उसको लगता है कि उसकी और जोगोमाया की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। इस कटाव के कारण, इस स्ट्रेंजनेस के कारण, जोगोमाया इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद द प्रेजेंस ऑफ कादम्बिनी इन हर हाउस। उसको भी लगातार लगता है कादम्बिनी का जो बिहेवियर है वो बहुत स्ट्रेंज है। नरेटर ऑब्जर्व्स, women cannot cope up with the things they cannot understand। या तो वो उनसे कोशिश करती हैं इग्नोर करें, और इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता, दे बिकम एंग्री विद दैट।
और यही चीज जोगमाया के साथ होती है। जोगमाया कादम्बनी के इस बिहेवियर के कारण उससे नाराज होना शुरू कर देती है। उसको लगता है जो मेरी डोमेस्टिक पीस थी घर की, कादम्बनी के आने के कारण वो खत्म हो गई है। रात को कादम्बनी जब अपने रूम में सोती है, शी इज मेनी टाइम्स ऑफन रात को एकदम से जगती है, स्क्रीम करना शुरू कर देती है और अपनी ही परछाई देखकर डर जाया करती है। इट इज नेचुरल फॉर कादम्बनीज मेंटल स्टेट, जिस कंडीशन में कादम्बनी है, बट इट इज नॉट नेचुरल फॉर जोगमाया। पूरा घर डर जाता है, जोगमाया के बच्चे डर जाते हैं उसकी चीख को सुनकर। जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, जोगमाया है, वो सब धीरे धीरे इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं और उनको सबको लगने लगता है कि कादम्बनी इज सीइंग समथिंग। कादम्बनी घोस्ट्स को देखती है और पूरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस और फियरफुल हो जाता है। इस कारण एक रात ऐसी ही एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है। कादम्बनी दौड़ते हुए जोगमाया के कमरे में आती है, बैग करते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए कि प्लीज उसको अकेला ना छोड़ो। जोगमाया इज वेरी एंग्री, शी कांट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर। इस तरह से उसके बेडरूम में आना, और उसको लगता है कि आज की आज कादम्बनी को भेजना चाहिए। श्रीपति किसी तरह से जोगमाया कादम्बनी दोनों को काम डाउन करता है और इवन कादम्बनी को कहता है कि जो पास वाला कमरा है, यू कैन स्टे देयर, यू कैन स्पेंड योर नाइट देयर। जोगमाया को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। नेक्स्ट डे जोगमाया कॉल्स एंड चाइल्ड श्रीपति, कैसे हस्बैंड हो तुम, किस तरह से तुम अलाउ कर सकते हो एक औरत को इतने लंबे समय तक अपने घर में रुकना जो मैरिड है। व्हाई डोंट यू नो अबाउट हर कंडीशन, हर सिचुएशन। उसके इन लॉज से बात क्यों नहीं करते, क्वेश्चन क्यों नहीं करते तुम। श्रीपति इज शॉक्ड, वो कहता है मैं ऐसे सोचता था शी इज योर फ्रेंड, उससे मैं क्वेश्चन करूंगा शी विल बी वेरी डिस्टर्ब और गेट डिस्टर्ब्ड, और वो उसको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी शायद वो अपने इन लॉज का मिसट्रीटमेंट के कारण यहां पर आई है, वो और परेशान हो जाएगी। लेकिन जोगमाया उसको कहती है कि नो, यू हैव टू गो एंड टेक एक्शन। तो श्रीपति कहती है इफ इट इज सो, तुम अगर ऐसा कहती हो तो मैं यही करूंगा। और वो डिसाइड करता है कादम्बनी के इन लॉज को विजिट करने का, कादम्बनी के ससुराल जाकर। श्रीपति जब चला जाता है तो जोगमाया और कादम्बनी के बीच में एक कन्फ्रंटेशन होता है। कादम्बनी को जोगमाया वेरी डायरेक्टली बोलती है इट इज इम्प्रॉपर, ये बिल्कुल अनुचित है फॉर यू टू स्टे सो लॉन्ग इन दिस हाउस, और कैसे लोग सोचेंगे कि क्यों और किस कायदे से तुम यहां रह रही हो। कादम्बनी सेज लोग सोचेंगे व्हाट आई हैव टू डू विद पीपल, व्हाट आई हैव टू डू विद व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट मी, आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो साथ ही में वो ये कहती है कि मैं कोई व्यक्ति, कोई पर्सन नहीं हूं, आई एम जस्ट अ शैडो, मैं केवल एक परछाई हूं, मैं कोई लिविंग पर्सन नहीं हूं। जोगमाया इज अनेबल टू आंसर। जोगमाया को लगता है कि ये कैसा रेस्पॉन्स है। लेटर दैट नाइट श्रीपति रिटर्न्स, उसके चेहरे पर लिखा हुआ है दैट ही इज इन अ ग्रेट डिलेमा, जबरदस्त दुविधा में है, कंटिन्यूअस रेन में भीग कर आया है। जोगमाया इज ईगर टू नो, क्या पता चला। श्रीपति लुकिंग डिस्टर्ब एंड ट्राइज टू डिले द आंसर। फाइनली ही रिवील्स कि तुम एक्चुअली में गलत हो जोगमाया। The person who is living in our house is not your childhood friend कादम्बनी, वो कादम्बनी नहीं हो सकती। श्रीपति का ये आंसर जोगमाया को और गुस्सा कर देता है। जोगमाया कहती है डू यू थिंक मी टू बी अ फुलिश पर्सन, जिसको अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में नहीं पता। आई एम फर्मली बिलीव श्योर दैट शी इज कादम्बनी। श्रीपति एविडेंस देने शुरू करता है एक एक करके, लेकिन जोगमाया डिसमिसेस करती है और इस तरह से दोनों का आर्ग्यूमेंट देर रात तक चलता रहता है। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दोनों ये बात पूरी तरह से मानते हैं कादम्बनी शुड नॉट स्टे देयर वन मोर डे। आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाता है। दे फॉरगेट, कादम्बनी नेक्स्ट रूम के अंदर ही है। जोगमाया देन आस्क श्रीपति
कि तुम मुझे ये बताओ, कादम्बनी, तुम कह रहे हो कि वो उनके इन-लॉज ने कहा है कादम्बनी की डेथ हो चुकी है, तो तुम मुझे ये बात बताओ कादम्बनी की डेथ कब हुई थी? दे फाइंड द डेट मैचेस। जिस दिन कादम्बनी श्रीपति के घर आई थी उससे एक दिन पहले ही उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म हुए थे। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, दोनों रियलाइज करते हैं कि दिस इज कादम्बनी बट नॉट अ लिविंग पर्सन बट द स्पिरिट ऑफ कादम्बनी। कादम्बनी कमरे में एंटर करती है और डिक्लेयर करती है, यस आई एम कादम्बनी बट आई एम नॉट अलाइव एनीमोर। मैं कोई जीवित व्यक्ति नहीं हूं। जो माया स्क्रीम्स करती है, श्रीपति स्पीचलेस हो जाता है। कादम्बनी इज आल्सो टोटली हेल्पलेस, उसको समझ नहीं आता क्या करना है और उस घर को छोड़ती है। कपल उसके इस एक्शन से अनकॉन्शियस हो जाता है, ये सोचकर दे हैव बीन लिविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम विद अ स्पिरिट। नाउ किसी तरह से कादम्बनी रिटर्न्स बैक टू रानीहाट। पूरे दिन वो एक बाहर टेम्पल, डिलैपिडेटेड एक खंडर सा टेम्पल है, उसमें बिताती है पूरा दिन लोगों से अवॉइड करते हुए और कुछ खाए पिए बिना। रात को जब सब, क्योंकि इट्स वंस अगेन अ रेनी नाइट, सब अपने अपने घरों में छुप गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उन गलियों में निकलने की, तब कादम्बनी इन लॉज के हाउस पहुंचती है, अपने फेस को कवर करते हुए अननोटिस्ड एंटर कर जाती है। शारदा शंकर की वाइफ कार्ड्स प्ले कर रही है अपनी विडोड सिस्टर इन लॉ के साथ। मेड किचन के अंदर है। खोका जो सिक हो चुका है वो अपने बेडरूम में सो रहा है। कादम्बनी बेडरूम में एंटर करती है और वापस से उसके मन में एक बार ये इच्छा होती है, एक बार मुझे फिर से इसको देखना है। हर हार्ट्स गेट ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए उसका प्यार उमड़ पड़ता है, वंडरिंग करते हुए, सोचते हुए, जब वो चली जाएगी कौन इसकी केयर करेगा। सडनली खोका जो अपनी नींद में वो काकी माँ पानी, काकी माँ पानी। कादम्बनी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हर अर्ज, हर लव फॉर द चाइल्ड, और वही देखती है कि जो इसकी केयर टेकर है वो तो ध्यान दे नहीं रही, वो खुद ग्लास में पानी भरकर लाती है। चाइल्ड वेक्स अप, उसको हैरानी होती है, वो तो ये मान के चलता था, सब जने उसको बोलते थे काकी माँ इज नो मोर, काकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उससे पूछता है क्या तुम सच में मर गई थी? एट दिस टाइम एक मेड को जो थोड़ी सी हलचल होती है वो वहां पर आती है और उसके हाथ में जो बर्तन होता है, कादम्बनी को देखकर डर के मारे उसके हाथ कांपते हैं, बर्तन जमीन पर गिरता है, आवाज होती है। शारदा शंकर की वाइफ उसको आवाज सुनती है, वो भी आती है, वो भी कादम्बनी को देखकर बेहोश हो जाती है। चाइल्ड इन सब चीजों को देखकर, कि कादम्बनी को देखकर सब कितना डर रहे हैं, वो बहुत ही हिस्टेरिकल हो जाता है, चिल्लाने लगता है काकी माँ जाओ यहां से, काकी माँ प्लीज लीव, काकी माँ प्लीज लीव। कादम्बनी ट्राई करती है उसको समझाने का, शी इज नॉट डेड, वो वही है जो वो पहले थी, वो जिंदा है। शारदा शंकर इतना केओस, इतनी आवाज सुनकर आता है और कादम्बनी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को बख्श दो, तुम्हारे अगर लास्ट राइट्स में, अंतिम संस्कार में मेरे से कोई कमी रह गई है, चूक रह गई है, तो मैं उनको पूरा करूंगा, प्लीज इसे बच्चे को स्पेयर कर दो। In a desperate attempt to prove she is alive, कादम्बनी strikes her forehead, उस ब्रास पॉट से अपने माथे पर जोर से मारती है और ब्लीड, उसके खून आना शुरू करता है, जो इस बात का बर्निंग प्रूफ होता है, जीता जागता सबूत होता है, she is not a spirit, a ghost, she is a person of blood and bone, वो एक जीती जागती प्राणी है। But no one believes her. Not knowing what to do, क्या करना चाहिए, कादम्बनी runs in a frantic manner, पागलों की तरह दौड़ती है out of the house, घर से बाहर जो कुआं है, and drowns herself, उसके अंदर छलांग लगा देती है। Her death is the final proof, irony है ये कि she dies trying to prove that she is alive. So this basically story जो है वो एक tragic irony के साथ खत्म होती है। कादम्बनी must try to prove she was alive. मर के वो साबित कर सकती है वो जिंदा है। Her final act of drowning, ये जो डूबने का उसका लास्ट एक्ट है,
ये वो सेक्रीफाइस है दूसरों को सच बताने के लिए। अभी तक वो जिंदा थी, अब वो मरी है। सो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो स्टोरी है ये किस तरह से एक फिलोसॉफिकल इंसाइट देती है लाइफ और डेथ के बीच के डिफरेंस को। कादम्बनी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक बड़ी ही मेंटल डिलेमा के अंदर है, वेदर शी इज अलाइव और डेड। बच्चे खोखा के लिए जो उसका प्यार है वो उसको प्रेरित करता है, ड्राइव करता है, that she comes again to that house to have one last look at the child। ये जो अर्थली बॉन्ड है, ये जो मोह है, ये उसको पूरी तरह से उस संसार में नहीं जाने देता। एज अ चाइल्डलेस विडो, कादम्बनी को पूरे टाइम इग्नोर किया जाता है, अंडर वैल्यू किया जाता है फैमिली और सोसाइटी के द्वारा, जो शो करता है कि विडो की लाइफ की हार्श रियलिटी क्या थी, स्पेशली 19th सेंचुरी बंगाल के अंदर, जहां पर वो एक बर्डन की तरह ट्रीट की जाती थी। सोसाइटी का जो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट व्हाट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, उनके लिए ये स्वीकार करना पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन जिसके लास्ट राइट्स कमिट हो चुके हैं वो पर्सन वापस आ भी सकता है, उसको दे जनरली ट्रीट एज अ कर्स एंड इल ओमेन। कादम्बनी का जो रिटर्न है, इट इज met with fear, rejection, उसकी फैमिली और बाकी लोग उसको घोस्ट मान के चलते हैं। कादम्बनी की ट्रेजिक जर्नी के मीडियम से टैगोर क्रिटिक करते हैं हमारे सोसाइटल फियर्स, हाईलाइट करते हैं पावर ऑफ लव और रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी फ्रेजाइल नेचर ऑफ लाइफ एंड आइडेंटिटी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। वी डिस्कस द स्टोरी। आई होप यू फाइंड इट वर्दी ऑफ योर टाइम। Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.